Mr. Mahinder Kumar Mastana, sir, for today's webinar. Welcome, sir. I'm also welcome our Chief Patron, Honorable Vice Chancellor, sir, Academic Chairperson, Registered Ma'am, Dean Ma'am, and distinguished faculty members, students, young budding artists, and dear participants. Before start the session, I just highlight our universities. Royal Global University, situated in prime location of Guwahati, Assam. Our university is a leading university of Northeast India. It caters to 27 schools offering 130 plus courses. The campus is secured, well maintained, and facilitated, including conducive classrooms. Recently, it is our proud moment to announce that the Royal Global University has been listed as #1 private university of Northeast India. The Department of Royal School of Fine Arts is currently running two specializations, that is painting and sculpture, having good art studios and good infrastructure under the proper guidance of esteemed faculties. Before start the session, today topic is that an interactive session comes sculpture making live demonstration in paper mache. Before start the session, now introduced. Uh, it is my privilege to introduce our chairperson academics, sir, Royal Global University, Professor Alok Kumar Borgwai, sir. Sir was the founder head of the Department of Molecular Biology and Biotechnology and registered at Tezpur University, Assam. He has also served as the Vice Chancellor of Dibrugarh University, Assam. Professor Borgwai is also the founder of the ONGC Sponsor Center of Petroleum Biotechnology in the Dibrugarh University. I would like to request, sir, for your brief remarks. Over to you, sir. Borgwai, sir. Hello, sir. Hello, hello, Borgwai, sir. Hello, hello, Borgwai, sir. Sir, listening. Hello, sir. Over to you, sir. Can you? Yeah, sir, you can hear. Yes, yes, sir, you can hear. Yes. Yes. Yeah. That would be very cool. A very good morning to everyone present in this very interesting webinar. Our very distinguished speaker this morning, Sri Mahinder Kumar Mastana ji, my dear colleagues from the finance department. I think I should not take time in giving my talk because people must be waiting for Mr. Mastana ji to listen to and for his live demonstration of sculpture. Am I right? Can you hear me, Kishan? Yes, sir. Kishan Yes, sir. You Bandi, can hear you, sir. are you Yes, yes, sir. listening? You can. Okay. Yes, So sir. Yes. the only thing is that yes, the finance department of Royal Global University, if I may say, is a small but a beautiful and a very powerful department in the sense that it is very creative and it is teaching its students in this very special area. I would say not too many people can be gifted, naturally gifted to study courses in different forms of fine arts, including sculpture. And we would hear from the Mastana ji that sculpture is, I think, one of the ancient forms of fine arts. We've seen it from before Christ to the contemporary times, right from those Egyptian sculptures, then Greek famous sculptures, up to through the Michelangelo iconic sculptures to the present day, even in Assam, we know about the Terracotta sculptures, Sarikandi sculptures in Goalpara and all that. These are very ancient. And I think we have a lot to learn from them. And I'm sure that our students, our young faculties,
today would be extremely benefited by Mastana ji's live demonstration of sculpturing. I would once again welcome Mr. Mastana ji, and also thank you, the organizers, for giving me this opportunity to welcome a very distinguished sculptor, Mr. Mastana. Over to you, Kishan. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your remarks. Okay. Now, it is my honor to introduce our today's speakers, Mr. Mahinder Kumar Mastana, sir. Sir is an assistant professor of APG College of Fine Arts, Jalandhar City, Punjab, as well as HOD of Sculpture Department. Sir has qualified from MFA from Kala Bhavan, Vishwabharati Shantiniketan, BFA from Government College of Art, Chandigarh, 1998. Sir has also qualified NAT June 2000. It is very good to hear that recently sir has completed PhD from Des Bhagat University, Punjab. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Sir has achieved about like cultural scholarship from young artists in different fields of art under Professor Sushen Ghosh, 2001-2003. Merit scholarship from Kala Bhavan, Shantiniketan. Scholarship from Culture and Language Department, Himachal Pradesh, Shimla, from 1995, 98, 98, 2000. 2001, sir has got another scholarship. This is called Kenoria Center of Arts, Ahmedabad. Sir has got awards, many awards from different organizations. In 2016, sir has got All India level award organized by Vishwa Bihar Society, Amritsar. 2015, Punjab State Award in Annual Art Exhibitions. 2014, Punjab State Award in Annual Exhibition at Indian Academy of Fine Arts, Amritsar. Honored with first prize in Annual Art Exhibition, GCA, Chandigarh, 1998. Sir has also participated in national and international conferences, seminars, and published his research works in UGC approved journals as well. Sir has actively participated in national and international exhibition and workshops in India and abroad. Recently, Sir has been selected for Best Entry Award is an international art exhibition on COVID-19 organized by Indian Royal Academy of Arts and Culture, Karnataka 2020. Recently participated in international art exhibition collaboration with Rebel Art Space, Thailand, and Charcoal Foundation, Bongora, and India 2020. Now, it is a very proud moment for an artist when his works has been collected from different centers. Sir works has been collected in Birla Academy of Fine Arts, Art and Culture, Kolkata, Government College of Art, Chandigarh, Government College of Architecture, Chandigarh, APG College of Fine Arts, Jalandhar, APG Education Society, New Delhi, Punjab University, Chandigarh, Jamia Millia Islamia, New Delhi, and private collection also in abroad country like France and South Korea. Sir has a massive achievements in his life. I'm just handed over to the Mastana sir for take over the session. Thank you, sir. Thank you, Kishan ji. Thank you very much. हेलो किशन जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, yes sir, आ रही है। अच्छा, मुझे ना मतलब बाकी कोई आगे कुछ मतलब जैसे वीडियो नहीं नजर आ रहा किसी का भी। सर एक्चुअली वीडियो सबका साउंड वो है ऑफ है सर, आप दिखा सकते हैं। एवरीवन इज विजिबल, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे सामने तो बस वही है, मीटिंग आईडी और वो पासवर्ड ही है मेरे सामने। हाँ, हो जाएगा। वो पैनल नहीं नजर आ रहा है, मतलब पार्टिसिपेंट कुछ भी। सर आपका लेफ्ट हैंड राइट में होगा सर, लैपटॉप में होगा तो राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में क्लासिक व्यू है मेरा। प्लस पार्टिसिपेंट में मारिए, इसमें आ जाएगा। पार्टिसिपेंट पे ग्रिड आपका एक्टिव स्पीकर एंड थंबनेल वीडियो भी होगा, वहाँ पर मारिए सर। राइट हैंड में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसा। हेलो, एक तो साइन इन है और एक क्लासिक व्यू नजर आ रहा है मुझे। यहाँ व्यू चेंज करना है मैंने? नहीं सर, नहीं चाहिए, आपका पूरा व्यू दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, पूरा व्यू दिखाई दे रहा है मुझे। क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू किशन। वेलकम सर।
और एचओडी मैडम, मौसमी मैडम, और जो भी यहाँ पे इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा। सभी के नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे आज इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया है, इसके लिए थैंक यू। तो स्कल्पचर का जैसे वेबिनार है ये, तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्कल्पचर में मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मुझे बताया गया है कि यहाँ पे स्कल्पचर के अलावा कुछ और भी इस फील्ड के स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर से हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि स्कल्पचर जो है वो बहुत ही एक एंशिएंट आर्ट है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी इसकी मतलब हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये आर्ट हुई है। में मतलब किस तरह की आर्ट हुई है, उसमें टेराकोटा वर्क हुए हैं, उसमें मेटल वर्क हुए हैं, उसमें स्टोन स्कल्पचर बने हैं। तो ज्यादा मैं मतलब हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, कि जो सिंपल वे है उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले हम क्ले में इस आर्ट को शुरू करते हैं, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। आई थिंक वेस्ट बंगाल में और असम में माटी बोलते हैं इसको। तो जो मट्टी या मिट्टी होती है वो मतलब इसको रिफाइन करके तैयार किया जाता है, उससे स्कल्पचर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो मिट्टी में स्कल्पचर बनते हैं वो क्या परमानेंट है? नहीं, मिट्टी में जो बनाए जाते हैं स्कल्पचर वो परमानेंट नहीं है। उनका मेथड होता है या तो उसको मतलब टेराकोटा में कन्वर्ट कर दीजिए, बेक कर दीजिए, या फिर मोल्डिंग कास्टिंग के थ्रू इसको हम किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सीमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, पीओपी में ट्रांसफर कर सकते हैं, मेटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ अगर दिखाऊं यहाँ पे तो नजर आएगा आपको किशन जी? हेलो? हाँ, हेलो हेलो सर, दिखाई देगा सर? मैं मुझे कुछ भी नजर व्यू नहीं नजर आ रहा है मुझे, मैं क्या मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ नहीं सर, दिखाने। आपको दिखाई दे रहा है सर कंप्लीट। अच्छा ठीक है। तो जैसे मतलब क्ले में बात कर रहा हूँ मैं, क्ले में जैसे इस तरह का स्कल्पचर हम बनाते हैं, कुछ छोटा फॉर्म बना सकते हैं, बड़ी फॉर्म बना सकते हैं। ये जैसे मेरा क्ले का वर्क है, अब किसी दूसरे मीडियम में इसी क्ले ये में करना है, टेराकोटा में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंदर से खाली रखूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको अंदर से हॉलो है, ये खाली किया हुआ है, इसको इसको बेक कर दूंगा, मैं भट्टी में पका दूंगा। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में भट्टी है, इसमें हम पका देते हैं। 7-8 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है बेक करने का। तो जब टेराकोटा में बेक हो जाता है तो ये इस तरह का इफेक्ट आ जाता है इसका, टेराकोटा में बेक होने के बाद रेडिश कलर आ जाता है इसका। और ये अब पानी में इसको डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मिट्टी में था, मिट्टी में ये मेल्ट हो सकता था, वो ड्यूरेबल नहीं था वो। अब ये मेरा वेदर प्रूफ हो गया, इसको मैं आउटडोर में भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, इंडोर में भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे काम हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी मीडियम है, जैसे वुड कार्विंग में, स्टोन कार्विंग में स्कल्पचर करते हैं। तो वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग में हमारे पास एक लॉग पड़ा होता है, उसको हमने स्कल्पचर शेप में ट्रांसफर करना है। उसको कैसे करेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल लेवल पे हम इस चीज को सोच सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो क्ले ही मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्ले में स्कल्पचर बनाएं। अब घर में जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, क्ले में कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्ले हमारे पास है नहीं घर में। तो और बहुत सारे मीडियम हमारे इसमें आ गए हैं, जिससे हम स्कल्पचर छोटे 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 घर में बैठ के बना सकते हैं। जैसे शिल्पकार भी हमारे पास एक मीडियम आया है, एमसिल। जैसे एमसिल का ही एक सब्स्टिट्यूट शिल्पकार आया है, जिससे हम स्कल्पचर घर में बैठ के बना सकते हैं। अब शिल्पकार क्या होता है, तो वो इस फील्ड से जुड़े हैं, आई थिंक वो तो अच्छी तरह से इसको जानते हैं, शिल्प काम कर रहे हैं। जो हमारे इस तरह का पैकेट में छोटा था, मोरिट्स को बोलते हैं, फेविक्रिल कंपनी ने इसको निकाला है। इसमें 2 स्टिक होती हैं, एक अब छोटा सा क्या करूंगा, मेरे तो बहुत सारा मटेरियल इसमें यूज हो जाएगा शिल्पकार में। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर बना लूंगा। पेपर होता है हमारे पास या न्यूज पेपर होता है, मैं थोड़ा सा उसका ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। उसको थोड़ा सा आर्मेचर, कोई स्टिक वगैरह या आयरन रॉड में इसमें फिक्स कर देता हूँ इस तरह से। इस तरह से रफ स्ट्रक्चर जो भी मैंने बनाना है, पहले सोचना है कि मैंने क्या बनाना है। कोई मतलब हेड बनाना है, कोई ऑड फॉर्म बनानी है, तो उस तरह का रफ स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ। न्यूज़पेपर से उसको रैप कर सकता हूँ, अच्छी तरह थ्रेड से मैं बांध सकता हूँ। उसके बाद मैं शिल्पकार को उसकी जो डिटेलिंग है उसके लिए यूज करूंगा। उसको मतलब शिल्पकार के साथ पूरी डिटेलिंग, नोज, आईज वगैरह या जो भी उसकी डिटेलिंग है,
तो उसकी थिकनेस से उसको कवर करूंगा। छोटे छोटे जैसे मैंने यहाँ काम किए हुए हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। जैसे इस तरह के काम हमने शिल्पकार में ये छोटे छोटे किए हैं, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किए हैं हमने भी, की ऑनलाइन क्लासेस जब लगेंगी तो उसमें हम शिल्पकार में छोटे छोटे वर्क करेंगे। और शिल्पकार में थोड़े से दोनों तरह के काम हम कर सकते हैं, राउंड स्कल्पचर भी बना सकते हैं और ये रिलीफ स्कल्पचर भी हम बना सकते हैं शिल्पकार में। ये भी शिल्पकार में बना हुआ है, जिसके पीछे हमारे एक प्लाई बोर्ड लगा हुआ है और इस तरह का हम रिलीफ स्कल्पचर बना के इनको फ्रेम वगैरह वॉल हैंगिंग के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर चाहते हैं हम कि कलरिंग वगैरह करनी है तो इसमें कलरिंग भी हो सकती है। एक्रेलिक पेंट आते हैं, स्प्रे पेंट आते हैं, एक दूसरे जो पेंटिंग में यूज होते हैं वो पेंट आते हैं, तो हम उनको भी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये शिल्पकार तो परमानेंट मीडियम नहीं है, क्योंकि ये वैसे तो ड्यूरेबल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन कि किसी को अगर आपने सेल करना है, कोई इसको बारे में क्या है, तो थोड़ा सा डाउट रहेगा कि इसको मतलब शिल्पकार बताएंगे वो शायद एक्सेप्ट करे ना करे। इसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सैंड कास्टिंग प्रोसेस है, मेटल कास्टिंग, उसके थ्रू हम इसको मेटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्रॉन्ज में ट्रांसफर कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो कि प्रोफेशनल लेवल पे कास्टिंग होती है वो इसको आराम से कर देते हैं। अपने स्टूडियो में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सारा सेटअप है उसमें, उसके थ्रू भी हम, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे अपने स्टूडियो में कर रहा हूँ, कुछ कास्टिंग कर रहा हूँ, कुछ मैं चंडीगढ़ से करवा रहा हूँ, जो बड़े काम मैं चंडीगढ़ से करवाता हूँ, उनके पास वहाँ पे पूरा सेटअप लगा होता है, वहां जाके मैं कास्टिंग करवा लेता हूँ इंडस्ट्री एरिया में। हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर मैशे। ये तो होगी शिल्पकार की, अच्छा मटीरियल है शिल्पकार भी। पेपर मैशे में स्कल्पचर कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पेपर मैशे को कैसे तैयार करना है। पेपर मैशे एक ऐसा मीडियम है जो हम घर में बैठ के उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो पेपर मैशे को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूज पेपर वगैरह जो हमारे घर में होते हैं या कोई और भी पेपर हमारे घर में होते हैं उनको कटिंग कर लेनी है। तरह की छोटी छोटी कटिंग करनी है हमने, और कोई कंटेनर ले लेना है। देखो मैं छोटे छोटे स्कल्पचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई बड़े ह्यूज स्कल्पचर की बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा स्कल्पचर हम बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आज जो आइडिया बताने लगा हूँ वो छोटे स्कल्पचर के ऊपर बता रहा हूँ कि हम घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं। जो आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको बड़ा स्कल्पचर नहीं बनाना है, उनको छोटे छोटे काम घर में बैठ कर बनाने हैं इस टाइम में, कुछ असाइनमेंट छोटी छोटी बनानी है, उनको बाद में हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया आपका एक डेवलप हो जाता है। तो हमने ऐसे थोड़ा सा एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर इसको डाल दिया, पेपर को डाल दिया, और इसको पानी इसके लेवल पे हमने फिल कर देना है, जो पेपर हमने डाला है उसके लेवल तक उसको पानी से भर देना है। अब पेपर मैशे डायरेक्ट मतलब एकदम से तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसको जैसे कल मैंने इस पेपर मैशे को यूज करना है तो मैं आज ये प्रोसेस करूंगा, ताकि इसको मेल्ट होने में, जो पेपर है उसको गलने में टाइम लगे, वो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा, तो उसको पानी में रहने दीजिए। और कल उसको क्या करना है, हमने कल उसको निकालना है पेपर मैशे को, और जो अच्छी थोड़ा मैश कर देना हाथ से। मैश करने के बाद इस तरह का कपड़ा हमारे पास होता है, जालीदार कपड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा जाली वाला होता है, कॉटन का भी हो सकता है, किसी दूसरे मीडियम का भी हो सकता है, थोड़ा सा जालीदार होता है, मोटा कपड़ा नहीं लेना है। तो उसको क्या करना है, पेपर मैशे को निकाल के निचोड़ के उसको हमने के अंदर डालना है। जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, इसके अंदर डाला मैंने, और इसको पानी को निचोड़ देना है इसके अंदर से, इसमें पानी नहीं मैंने छोड़ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अगर आपको लगता है कि अभी ठीक है मुझे काम जल्दी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को हम, जैसे घर में मिक्सी होती है हमारे, जिसमें हम मसाला वगैरह तैयार करते हैं या कुछ ग्राइंड करते हैं हम, तो हम उसके अंदर डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तो बहुत ही फाइन हो जाता है ये, सॉफ्ट होता है ये। और सबसे बढ़िया है पेपर मैशे के लिए एग ट्रे। वेस्ट बंगाल में और असम वगैरह में मेरे ख्याल से एग ट्रे बहुत सारी मिल जाती हैं, उसको हम यूज करते हैं पेपर मैशे में, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। न्यूज़पेपर के साथ हम एग ट्रे भी मिक्स कर सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग करके उसको पानी में डाल दीजिए, और अगले दिन उसको हाथ से मैश कर दी, दोबारा जो प्रोसेस है उसी में निचोड़ के पानी कपड़े में निचोड़ के उसको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा फाइन चाहिए तो ग्राइंड कर सकते हैं, चाहिए थोड़ा सा टेक्सचर वाला चाहिए तो उसको, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ज्यादा।
अब इसके बाद मैंने क्या करना है, जब मेरा ये तैयार हो गया, जैसे इस तरह का पेस्ट मेरे पास तैयार हो जाएगा, ये पेस्ट मेरे पास तैयार हो गया इस तरह का, तो मैं क्या करूंगा, इसमें लेमन डाल दूंगा, एक दो जूस में निचोड़ दीजिए, क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंड, आपने कितना मतलब ये बनाया है, डो जो बनाया है कितना बनाया है, तो लेमन डाल दीजिए। लेमन क्या करेगा, लेमन इसको फ्रेश रखेगा, इसको मतलब खराब नहीं होने देगा। जैसे उसमें कई बार होता है कि फंगस लग जाती है, तो वो उसको लगने नहीं देगा, या उसमें जो स्मेल वगैरह उसमें होने देगा। तो लेमन, इसको लेमन डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैंने, जैसे मेरे पास अभी मस्टर्ड ऑयल पड़ा है, ये मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास है। अब मैं इसको कंटेनर में मिक्स करूंगा, सारे मिक्सचर को। मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, इतना कंटेनर मैंने ये बनाया अभी, जैसे बनाया था मैंने अभी, इसको कल ही डाला था सेट होने के लिए। जैसे मुझे किचन में, मैंने इसको डाल दिया था कि थोड़ा सा मटेरियल हमारा तैयार हो जाए। मेरे पास जैसे ये मटेरियल तैयार हो गया है इस तरह का। अब मैंने थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है, बस आइडिया से डाल, 2-3 चम्मच हम डाल सकते हैं अगर इतना कंटेनर है हमारे पास। मस्टर्ड ऑयल कौन सा डालना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने स्पेशल किसी ब्रांड है, कुछ नहीं ऐसा। ये हम जब डालेंगे तो हमारा जो ये पेपर मैश है ये स्टिकी नहीं होगा। ऐसे इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया। हमारे घर में मैदा पड़ा होता है, थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं इसके अंदर। मैदा नहीं है तो हम जिस चपाती बनाते हैं, गेहूं का आटा जिसको बोलते हैं, वो हम थोड़ा सा 2-3-4 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, या 10% जो हमारा डो तैयार हुआ है उसमें 10% का क्वांटिटी में उसमें डालते हैं। तो ये इस तरह से हमारा मिक्सचर एक तैयार हो जाता है। अब जब तक हमने काम नहीं करना है तो हमने इस तरह के पॉलिथीन में इसको रैप करके रख देना है, टाइट पॉलिथीन में रख देना है। अब जब हमने इसमें काम तैयार शुरू करना है तो हमने क्या करना है, ये मेरा जो, अब मैं इसमें फेविकोल, क्योंकि फेविकोल बहुत जरूरी है, बाइंडर का काम करेगा। जब तक हम फेविकोल नहीं डालेंगे तब तक ये ड्राई भी नहीं होगा। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर फेविकोल। फेविकोल डालने के बाद फिर मैश करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है इसकी, वो जैसे हमारे पास ये स्कल्पचर बनाने के लिए उसी फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है कि जो शेप है हम तरीके से कर सकते हैं। जो भी लगता है कि मैंने ये बनाना है, माइंड सेटअप करना है कि मैंने क्या बनाना है। कंपोजिशन आपकी अपनी हो सकती है, नेचर को आप फॉलो कर सकते हो। इतनी सारी फॉर्म्स हैं नेचर में, इतने सारे एनिमल्स, बर्ड्स, छोटे छोटे हैं, उनको आप बना सकते हो। घर में बैठे बैठे आप सोच सकते हो। तो इस तरह का हमारे पास एक ये मटेरियल जो है वो अब तैयार हो गया। ये मेरे पास तैयार हो गया ये मटेरियल। हम मोल्ड कर सकते हैं जैसे मर्जी, हम इसको अपना जो कंसेप्ट आर्ट का जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सिंपल फॉर्म से शुरू करना है, मुझे आइडिया नहीं है स्कल्पचर का कि मैंने क्या, इतना नॉलेज नहीं है स्कल्पचर का, मैं सिंपल वे में आपको बताने लगा हूँ। हम क्या करेंगे, अगर पेपर डो ये कम है मेरे पास, देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली हम बना सकता हूँ फॉर्म, जैसे इसको आप वैसे ही उसको आप बना सकते हो, इससे आराम से मोल्ड हो जाता है। स्पैरो जो
तो ये आराम से ऐसे ही बन सकती है। की शेप धीरे धीरे इसको डेवलप कर दीजिए। जो आपकी ड्राइंग है हल्का सा उसको शेप बना सकते हैं। तो ये तो बड़े आराम से बन जाती है। जैसे हम क्ले में बनाते हैं वैसे इसमें बना सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट मेथड में होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं डो मेरे पास कम बनी है, पेपर मैशे कम बनी है, तो एक तो इस तरह की मतलब फॉर्म थोड़ी सी बन गई है मेरे पास। तो थोड़ा सा इसको सूखने देंगे तो उसके बाद मैं और डिटेलिंग इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी होती है। जो अगर मैंने सॉलिड इसमें बनाया, क्योंकि अभी ये गीला है, इसको सूखने के बाद मैं फिर काम कर सकता हूँ। एक दिन में ये सूख जाता है। थोड़ा धूप में रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सूखने के बाद इसमें और काम कर सकते हैं। और लगता है कि नहीं मैंने थोड़ा सा बड़ा काम करना है और डो मेरी कम बनी है, तो थोड़ा बड़े लार्ज इसमें भी हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं जैसे न्यूज़पेपर हमारे पास पड़े हैं, इसको लेके हम थोड़ी सी फॉर्म रफ सी बना सकते हैं। इस तरह की फॉर्म और ऐड कर दीजिए, उसको रस्सी से या धागे टैप कर दीजिए, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म कोई आप बना सकते हो। उसके बाद उसके साथ आप काम कर सकते हो। और पेपर जैसे मैंने ये इस तरह बनाई है, धागे से इसको अच्छी तरह से बांध दिया, तो ये स्टफी हो गया, ये मतलब हार्ड हो गया। दबाऊंगा इसको तो ये दबेगा नहीं, एकदम से हार्ड है ये फॉर्म। हार्ड सरफेस चाहिए मुझे, ताकि मैं जैसे वो अंदर प्रेस ना हो। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फेविकोल लगाऊंगा इस लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर। फेविकोल ब्रश के साथ हम ऐसे लगा सकते हैं। फेविकोल लगाते जाइए। सारे जहां जहां इसको लगाना है पेपर मैशे को, वहां हम फेविकोल लगाते जाएंगे। और ये लीजिए, ऐसे इसको लेना है हमने। जैसे क्ले हम यूज करते हैं स्कल्पचर बनाने में, यहाँ पे यूज करना है इसको। तो यहाँ इसकी पेस्टिंग करते जाइए, ऐसे प्रेस कर करके इसको लगाते जाइए। तो फेविकोल हमने लगाया, इसको प्रॉपर बाइंड करेगा। ऐसे लगाते जाइए। इसमें ये है कि जितना हम इसमें फेविकोल अच्छा लगाएंगे उतना ही ये बढ़िया हो जाएगा, उतना ही हार्ड हो जाएगा ये। इस तरह से जो भी फॉर्म आपने क्रिएट करनी है तो लगाते जाइए। इसको पेपर से हम डेवलप करते जाएंगे, पेपर मैशे से। ये मैं घर में बैठ के जो बना सकते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे नहीं इसको मैं बता रहा हूँ अभी कि हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे भी मैं इसके बाद कि कैसे कर सकते हैं इसको। छोटी छोटी फॉर्म अभी मैं बता रहा हूँ जैसे ऐसे इसको प्रेस कर दीजिए, आराम से लगाइए। इसमें हम आर्मेचर, इसको एज आर्मेचर हम यूज कर रहे हैं। जो मैंने ये रफ सा बनाया है, ये आर्मेचर का काम करेगा। क्योंकि पेपर से हम इतनी डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे पास ये डो बनी है, जो पेपर क्ले बनी है, जिसको हम बोलते हैं पेपर मैशे बोलते हैं, तो उससे हम बड़े आराम से फिर डिटेलिंग कर सकते हैं। थोड़ा विंग्स की शेप बनानी है या जो भी इसको बनाना है वो हम इसको लगा सकते हैं। तरीके से लगाते जाना है इसको। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नेक छोटी है तो हम इसको पेपर मैशे से इसको ऊपर ले जा सकते हैं नेक को। आर्मेचर हमारा ऑलरेडी लगा है, तो हमारे पास ये होता है कि जो आर्मेचर है उससे थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं इसको। अब कितने इसको लेके जाना है वो आपके
इस तरह से पूरी फॉर्म को कवर करना है हमने। ये जो वॉल्यूम होता है उसका थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ से कम रखना है, कहाँ से मोटा रखना है इसको। जैसे मैंने इसको अभी इतना एक्सटेंड किया है, यहाँ पे पेपर नहीं था तो एक्सटेंड कर सकते हैं। जहाँ पे लग रहा है कि फेविकोल नहीं लगा है वहां हम दोबारा फेविकोल लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अभी जैसे मैंने हाथ में पकड़ के इसको दिखा रहा हूँ, तो इसको हम टेबल के ऊपर रख के बड़े आराम से कर सकते हैं। नीचे कोई पेपर वगैरह रख लीजिए, पॉलिथीन रख लीजिए ताकि वो उसके साथ चिपके ना, उसके ऊपर रख के हम आराम से कर सकते हैं इसको। इस तरह से इसको ड्रिंक कर दीजिए। इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं कल्चर में। कहाँ से कम रखना है, कहाँ से ज्यादा करना है, का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने देखो यहाँ लगाया तो इससे पकड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इसके साथ है ठीक हो गया ये अच्छी तरह से। अब यहाँ पे लगाना है मैंने, तो यहाँ मैं लगाऊंगा ये। हाँ, आप जो ये पेपर मैशे है ये अगर बढ़िया क्वालिटी का बना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये नहीं हो जाते हैं इसके। पेपर मैशी को 2-3 दिन अगर पानी में रहने दीजिए तो और बढ़िया बन जाती है। थोड़ा उसको मैश करते जाइए, इस तरह से हम इसको कवर करते जाएंगे। ये पूरा कवर कर दिया मैंने। ऐसे बस ओवरलैपिंग कर सकते हैं हम इसमें। जो जॉइंट है जहाँ पे हमने पहले लगाया कर सकते हैं आराम से। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको मतलब ऐसे ही भी लगता है लगा सकते हैं इसमें। बाद में हम इसको कहीं से पतला रखना है, कहीं से मोटा रखना है, वो ऐड या रिमूव बीच में कर सकते हैं। इस तरह से मेरी एक तैयार हो रही है। इसमें जब हमने ये लगा लिया, देखना है कि अब इसमें लगा है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं बाद में भी। और सूखने के बाद भी इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा फेविकोल लगा के दोबारे हल्का सा, फिर इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि क्ले में अगर हम एक बार सूख गया तो उसको फिर मैनेज ही कर पाते हैं, लेकिन इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं अगर विंग्स बनाऊं तो जैसे हमारे पास होते हैं स्कल्पचर के टूल्स होते हैं, अगर जैसे स्कल्पचर फील्ड से हैं उनके पास तो होंगे, जो दूसरी फील्ड वाले हैं उनके पास अगर टूल्स नहीं है, अगर नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये 10 रुपए का एक नेल फाइलर आता है, मार्केट में मिल आराम से। ब्यूटी जहाँ पे ब्यूटिशियन का सामान समून होता है, उनके पास कॉस्मेटिक का सामान होता है, उनके पास ये 5-10 रुपए में ये मिल जाता है नेल फाइलर। तो इससे भी हम हल्का इसका शेप हम यहाँ पे बनाएंगे। और उसके बाद अब मुझे
फेविकोल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें फेविकोल मिक्स किया है, तो हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, इसको रिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। दोनों साइड ही बराबर लगाना है इसको, क्योंकि नेचर जब हम देखते हैं तो जो स्पैरो होती है या कोई बर्ड्स होते हैं, वो उनके दोनों साइड एक जैसा होता है, मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं। ये नहीं कि एक साइड कम है एक साइड बड़ा है, ऐसा नहीं होता। बस थोड़ा ध्यान ये रखना टेक्निकली कि देखने में वो सुंदर लगे, अनबैलेंस ना लगे। इस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ध्यान से देखना है, कहीं लग रहा है कि मुझे ये है तो आप लगा सकते हो, वर्क को इम्प्रूव कर सकते हो। लाइनों को इमर्ज कर देना जो जो हमने लगाई है इसको, और ये ड्यूरेबल हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो एक फॉर्म है वो तैयार हो जाएगी घर बैठे बैठे। कोई ज्यादा मटेरियल इसमें हमने मार्केट से नहीं लिया, फेविकोल एक लेना पड़ेगा, बाकी तो घर में ही होता सब कुछ। फेविकोल अगर छोटी पैक छोटा काम करना तो छोटी पैकिंग ले लीजिए, 100 ml ले लीजिए, 200 ml ले लीजिए। थोड़ा बड़ा काम करना है उसके लिए बड़ा आधा किलो किलो की पैकिंग आती है फेविकोल की, वो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास एक फॉर्म जो है वो तैयार हो गई है। मैंने इसका बैलेंस देखना है कि बैलेंस ये मतलब ठीक बैठती है कि नहीं, तो तरह का कोई बेस अपने पास रखना है और उसके ऊपर रख के देखना है इसको। मेरे पास अभी पॉसिबिलिटी है कि इसका बेस मैं अभी ठीक कर सकता हूँ, जब हार्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा फिर मतलब ये बैठ जाएगा इसके ऊपर आराम से। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, कोई अपनी स्पेस अपने आप जो है बेस बना लेगा इसका। इस तरह से हम इसको बना के धूप में रख सकते हैं, सुखा सकते हैं। सूखने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर और फॉर्म बनानी है आपने तो जैसे मैंने ये कि पेपर मैशे में बनाई है, इस तरह की एक फॉर्म बना के हमारी ये कंपोजिशन बन जाती है। तो ये दो मतलब हमारे पास ये वर्ड बन गए, तो ये कंपोजिशन हमारी बन गई है। इस तरह से हम पेपर मैशे में काम कर सकते हैं, घर बैठ के छोटे छोटे वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमने बड़े स्कल्पचर बनाने हैं तभी वो फाइनल होंगे, क्योंकि छोटे वर्क भी कई बार जो भी वर्क करना है उसको इमोशन के साथ करना है। हमारे जो इमोशन है, जब तक हम उस काम में नजर नहीं आएंगे उसका मजा नहीं आएगा काम का। कि फीलिंग को लेके काम करना है। अगर आप स्पैरो बना रहे हैं तो स्पैरो की फीलिंग को साथ में रखना है कि मैंने इसके अंदर ये चीजें बनानी है। अब रही बात ये कि क्या ये परमानेंट मीडियम है पेपर मैशे? परमानेंट जैसे पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग में क्या होता है कि पेंटिंग में भी हमारे पास कैनवस होती है, उसके ऊपर हम एक्रेलिक करते हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम उस ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट उस लेवल पे कर सकते हैं पेपर मैशे की कि उसको हम एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई डिजाइनिंग करनी है या कोई नेचर में जो आपको नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली करना है, आप कर सकते हो। तो इस सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कोई ब्रीक कपड़ा इसको सूखने देना है, एकदम से नहीं करना है। इसको सूखने देना है, एक दो दिन सूखने में शायद लग सकते हैं,
धूप अच्छी है तो हो सकता है शाम तक सूख जाए, धूप अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये इस तरह का हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा, ये पत्थर की तरह हो गया है। अब इसको आप जैसे मर्जी इसको फेंको, इसको जैसे मर्जी आप बीट करो, तो ये नहीं टूटेगा, ये मटेरियल हो गया ये। अगर आपने इसको कलरिंग करनी है तो कलरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पीओपी बैंडेज होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है, इसको डॉक्टर ये मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। अगर वो आप नहीं लेना चाहते हो छोड़ दीजिए, ठीक है। घर में कोई कॉटन का जालीदार धोती वाला कपड़ा ब्रीक ब्रीक डाली होती है उसकी, वो पड़ा होता है, उसको क्या करेंगे हम फेविकोल की हल्की हल्की लेयर लगा के उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, सारे के ऊपर पेस्ट कर देंगे। या पीओपी पैकेट मिल जाता है मेरे ख्याल 30-20 रुपए में पैकेट मिलता है, उसमें टिक कर दीजिए, उसके ऊपर लेयरिंग कर दीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद हमने टेक्सचर व्हाइट और फेविकोल मिक्स करके इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है, जैसे हम कैनवस के ऊपर करते हैं पेंटिंग बनाने के लिए। कैनवस तैयार करते हैं, उसमें टेक्सचर व्हाइट और फेविकोल की लेयर लगाते हैं, हम कलरिंग करते हैं, उसके ऊपर कलर करते हैं, तो उस लेवल पे हम इसको ला सकते हैं। उसके बाद हम कलर इसके एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, फेविक्रिल कलर कर सकते हैं। तो जो कलर है वो परमानेंट हो जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं, पानी के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, कोई वेदर का इफेक्ट नहीं होगा। तो एक हमारे पास आर्ट पीस ये तैयार हो जाता है, जो हमने खुद हाथों से तैयार किया है। एक क्रिएटिव वर्क हो सकता है आपका, आपकी अपनी थिंकिंग के हिसाब से हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइनल कर सकते हैं। हाँ, अगर लगता है कि मैंने इसको किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करना है, तो हम ये दूसरे मीडियम में सैंड कास्टिंग अगर आपके एरिया में हो रही है, मेटल सैंड कास्टिंग प्रोसेस जो होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हो रही है वहां पे, तो आप वहां पे आराम से इसको करा सकते हैं, क्योंकि इनकट्स नहीं है, बड़े आराम से ये निकल जाएगा। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें सॉलिड वर्क निकलता है सैंड कास्टिंग में, तो इसको हम कर सकते हैं। या कोई और अगर आपको लगता है नहीं मैंने हॉलो कास्टिंग करवानी है, तो आप इसकी पीस मोड लेके स्कल्पचर में, मतलब इटालियन प्रोसेस है, उसके थ्रू भी हम इसकी कास्टिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हो। अगर आपको पेपर मैशे में ही सेटिस्फेक्शन है, लीव इट, वही आपका आर्ट वर्क हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने इसको मेटल में ट्रांसफर करना है, कौन सी मेटल में करना है, सॉलिड में करना है, सॉलिड मेटल में करना है तो सैंड कास्टिंग में करवा लीजिए। अगर आप हॉलो मेटल कास्टिंग प्रोसेस से करना है, इस मोल्डिंग प्रोसेस होता है, टेक्निकल टर्म है ये, उसमें मदर मोल्ड वगैरह डलता है, उसके बाद हम वैक्सिंग कोटिंग करते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अगर वहां पे कोई हो रही है तो वो वहां पे आराम से कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं कर, घर में तो नहीं होता ये, इसके लिए फाउंड्री वगैरह चाहिए होती है, तो उसके आप कास्टिंग करवा सकते हो, हॉलो कास्टिंग इसमें हो सकती है। जैसे मैंने छोटे छोटे वर्क अभी ये किए हुए हैं, तो मैंने ये जैसे ब्रॉन्ज में, ये अभी मेरा छोटा सा काम है, ये फेस मैंने बनाए हैं, ये भी ब्राउन में बने हुए में बने हुए हैं, ये सैंड कास्टिंग के थ्रू ही मैंने करवाए हैं। ये सॉलिड है तो छोटे वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने ये इस तरह के फेस भी मैंने सैंड कास्टिंग के थ्रू करवाई, कास्टिंग किए हुए हैं, एल्यूमिनियम है ये फेस। इसमें अगर मैं और चाहूंगा थोड़ा इसको मैं सकता हूँ इसको वुडन का कोई नीचे पेडेस्टल बना के, जो मैं अभी कर रहा हूँ मेरे काम में नॉर्मली, जो एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं मैं इसमें कर रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं करना है छोड़ दीजिए, छोटे छोटे काम रख लीजिए, आप डिस्प्ले कर दीजिए, इसको पेडेस्टल लगाइए, उसके ऊपर रख लीजिए, तो एक आपका आर्ट पीस आपके सामने तैयार हो जाता है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें हैं बहुत अच्छी। आप घर में बैठ के इसको बड़े आराम से पेपर मैशे के साथ काम कर सकते हैं और छोटे छोटे वर्क आप कर सकते हो। पैरोज बना लीजिए, कोई छोटे छोटे फेस बना लीजिए, छोटे छोटे कोई आप नेचर में, नेचर से इंस्पायर्ड है, कुछ छोटी छोटी आपने मतलब क्रिएचर्स इतने सारे होते हैं वो बनाने हैं, वो बना लीजिए। और हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा काम करना है तो हम आर्मेचर थोड़ा सा, जैसे इस तरह का भी ये मैंने पेपर मैशे में ही शुरू किया अभी। तो एक बोतल है, एक बोतल के ऊपर मैंने पेपर मैशे लगाना शुरू कर दिया, ये भी हार्ड हो गई है। इसके बाद मैं इसको दूसरे मीडियम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह का भी थोड़ा सा भी काम करने का मतलब कर रहा हूँ प्लानिंग। ठीक है, तो वो अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन में ये सारा हम कर सकते हैं घर में बैठ के। बाकी वुडन और स्टोन वगैरह अगर आपके पास मटेरियल पड़ा है तो आप उससे स्कल्पचर बना सकते हैं। वुडन में बनाने के लिए पहले हमें थोड़ा सा उसका जो रफ आइडिया लेना होता है, जिसको हम मैकेट बोलते हैं, कितना उसको अपने इलाहाबाद में इलाज करना है उसको, तो छोटा सा आइडिया लेके हमने उसको पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके उसको 3D में बनाना है, 3D में जैसे क्ले में बनाना है उसको। क्ले में बनाने के बाद उसको हम इलाज कर सकते हैं, जो भी हमारी मतलब फॉर्म है, बड़ी लकड़ी कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको
ट्रांसफर कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, कार्विंग कर सकते हैं। तो स्कल्पचर तो ऑलरेडी उसके अंदर है, उसके अंदर छुपा हुआ है, के अंदर होता है। तो आपने उसको विजुअलाइज करना है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको देखना है कि उसके अंदर मैं क्या निकाल सकता हूँ। मेरे जो खुद की फॉर्म है, जो मेरे अंदर से निकलती है, क्योंकि हर आर्ट होती है, वो उसको उसी फॉर्म को देख के विजुअलाइज करता है कि मैं अगर वुड में काम करना है तो मेरा जो फॉर्म है, मेरी इस तरह की फॉर्म सकती है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं हम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म है, लंबे इसमें इसको बना लीजिए, छोटी है तो छोटे इसमें इसको आप इमेजिन कर लीजिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसी तरह बना सकते हैं या इसी तरह का काम कर सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहते हैं, ओरिजिनलिटी है, उसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्विंग टेक्निक से आप स्कल्पचर बना सकते हो, मॉडलिंग टेक्निक से स्कल्पचर, और अभी जो मतलब टाइम चल रहा है वो तो इतना वास्ट हो गया है कि उसमें आप स्कल्पचर किसी तरह के भी बेल्डिंग स्कल्पचर बना रहे हैं, स्क्रैप मेटल को बेल्ड करके बना रहे हैं। तो स्कल्पचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, स्कल्पचर में तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमने इसी इसमें रहना है। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले किशन जी से बात कर रहा था, ये जैसे मेरा एक वर्क है, फिगरेटिव वर्क है ये, तो मैंने इसको किया। पहले मैंने आर्मेचर जो था ये लगाया, इसका वायर का आर्मेचर, क्योंकि बिना आर्मेचर के मैं इसको नहीं बना सकता था। मैंने इसको जब आर्मेचर लगाया उसके बाद पेपर बना के पेपर मैशेस से इसकी सारी रेंडरिंग की, क्योंकि अगर मैं इतना मटेरियल इसमें लगाता एमफिल या शिल्पकार तो बहुत कॉस्टली पड़ जाना था मुझे। और तो मैंने क्या किया, इसको पेपर मैशेस से रफ रफ अंदर इसकी पूरी फिलिंग कर दी। इसका जो वॉल्यूम है इतना मतलब ये करके मैंने उसका सारा फिल कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसको शिल्पकार जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था, ये वाला मोल्डेड, इसको लेके फिर मैंने जैसे ये व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, इससे थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी इसकी। ये ड्रेस जो था वो मैंने इससे बना दिया, सारा शिल्पकार से बना दिया। तो इस तरह का ये परमानेंट मटेरियल हो गया। अभी ये इसको पानी में डाल दूं, इसको बाहर डिस्प्ले कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक परमानेंट मीडियम, परमानेंट स्ट्रक्चर मेरे पास हो गया ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसको हम आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह का ये स्कल्पचर का जो सफर है ये चलता रहता है, घर में हम बना सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ये सूखेगा उसके बाद मैं और डिटेलिंग इसकी करूंगा। तो अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज हैं या कुछ पूछना है तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. In the meantime, when you have shown the process, in the meantime, our Vice Chancellor sir had joined the webinar. Sir, welcome, Okay, sir. thank you. It is my deepest honor to introduce the Vice Chancellor of the Royal Global University. नहीं, Professor- Bhakti, नहीं, not Sir. required, not required, not required. Sir. I was just engrossed in understanding the way he was making different sculptures. Initially, he was trying to do something with a bird and using maybe mud, and then was talking about carpentry. So I was attending another webinar, very important one, the Vice Chancellor's meet, but in between I decided to be part of it. So I just wanted to tell Mr. Mahindra Kumar Mastana Saab, thank you so much. Good And it morning, sir. was, Good my morning. intro- Thank you, sir. Good morning. Bhakti's introduction is not required. Everybody knows, and Mastana Saab will, if want, will read it from the website if required. So बहुत अच्छा लगा आपका ये deliberation देख करके, और I think मैं बहुत मुझे शौक है personally भी। I mean, when I was in class 6th, 7th and 8th, our school used to have the clay modeling room, the full room of clay modeling, and I used to love that very much. और हमारी यूनिवर्सिटी में भी whenever these kids are making clay models or maybe doing sculptures, wood craft or anything, I always go and see they do in the workshop. And we have very, very talented students with us. And our sculpture, Master Bhakti, is also doing a great job. The whole department of fine arts under the leadership of Madam is doing very, very well. So I think, thank you so very much. APJ Institute is known to me from last almost 15, 16 years, not the Jalandhar one, but then APJ institution in Greater Noida. There I used to come as an examiner for many, many years when it was, the architecture school and management school. I remember those days. Yes. So I remember those days. And that I'm talking about 2002, 3, 4, 5.
when I was director in UP Technical University Institution. So that was a long association with APJ. So my best wishes to all the participants. I will not come in between you and the participants further, but I will keep on watching 2 webinars together. So there is another going on here and another going on here. So I'm at 2 places. I'm a multitasking person. So I'm attending 2 together. So please don't mind. But I was very, very conscious about everything, whatever you have said, Mastana Saab. My best wishes to all of you. And thank you, Bhakti Saab. You carry on. Okay, Thank you. thank you, sir. Thank you. Okay. Before proceed to the second sessions, I'm just requesting all the participants. If you have any query or questions, please drop your questions in the chat box. We'll take over from there. And at last, we have a feedback form. We'll provide it to you for getting the e-certificate. Sir, can you proceed for your presentation? हाँ जी Yes. मुझे ना एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है व्यू मतलब इसका, तो मैं कैसे? No, sir, I'm showing, sir. Don't worry, sir. ओके Is this visible? नहीं, इसमें मुझे एक आ रहा है कि वीर यू कैन चेक मॉडर्न व्यू. It's visible now. दिख रहा है Bhakti. Yes, sir. The interactive session cum sculpture making live demonstration in Paperway. हेलो सर, महेंद्र सर. हाँ जी दिखाई दे रहा है सर? अभी आया है स्क्रीन में नहीं, आपका? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिखा दे रहा. नेटवर्क इशू हो सकता है. किशान दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में. मैंने शेयर कर लिया ऑलरेडी. हाँ, ये स्क्रीन इज विजिबल नाउ किशान. तो मीटिंग नंबर पे ज्वाइन हो रहा है मुझे भी. ओके, महेंद्र सर, कैन यू सीइंग दैट? मुझे ना अभी नजर नहीं आ रही स्क्रीन बिल्कुल भी. इसमें ना मैं अभी एंटर किया है, तो एंटर द मीटिंग नंबर टू ज्वाइन. तो मैं तो ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ. रिजल्ट एसमन सर को. Sir, can you open the PPT, sir, from your end? Then we'll. ना सारा का PPT is only with me, sir. Sumanta sir. Oh. Sumanta sir, you can share this. I can see that. No. Actually, screen issue है. तो स्क्रीन नहीं मेरे साथ शेयर. हाँ screen हो गया? issue है. हाँ सर, ठीक है. जैसे पहले सुबह हुआ था ना हमारा, मतलब मैं देख रहा था आपको, वो उसके बाद फिर नजर नहीं आ रहा मुझे सिर्फ सेशन का नाम नजर आ रहा है, ये एन इंटरेक्टिव सेशन कम स्कल्पचर मेकिंग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. अभी दिखाई दे रहा है सर? नहीं. कोई व्यू तो नहीं चेंज करना मैंने यहाँ से, जैसे क्लासिक नहीं, व्यू सर. है मेरे पास. नहीं सर, क्लासिक व्यू में हूँ. सर मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ सर, आप देख लीजिए. नहीं, अभी नहीं आ रहा है. Sumanta sir is visible. Sumanta sir? Yes, it's visible. The side points are is a network issue, I think. सर Sound आपका विंडो ओपन है क्या? वो वेबएक्स का? वीडियो नहीं, वेबएक्स विंडो ओपन है ना? हाँ जी, अब हुआ. ठीक है, अब हो गया. हाँ, वही हुआ था. हाँ, ठीक हाँ है. जी, अब हुआ था. मेरे ख्याल से मेरा ऑफ हो गया था यहाँ से. वो हुआ था. हाँ, मैं वही सोच रहा था. ठीक है. अब नजर आ रहा है मुझे बिल्कुल. ठीक है सर. सर I हाँ can जी, अब नजर आ रहा है. study. Okay sir.
के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमने एक, जैसे डोकरा मेटल कास्टिंग होती है ना, उसी का एक अलग वर्जन यहाँ पे तैयार किया है जिससे हम मेटल कास्टिंग कर रहे हैं। ये वी वैक्स में बनाई थी। ये टेराकोटा के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्ले में बनाया, अभी लॉकडाउन में बनाया ये वर्क। ये भी लॉकडाउन में बनाया है टेराकोटा के लिए। ये भी टेराकोटा के लिए लॉकडाउन में बनाया है। ये मैंने एल्यूमिनियम में कास्ट किया हुआ है सैंड कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ये एक ब्रॉन्ज में स्पैरो और ये एल्यूमिनियम में जो पीछे फिगर है, ये दोनों एल्यूमिनियम में है। ये वुडन में है, वुड कार्विंग में किया है। वुड कार्विंग में किया है। ये वुडन में है मेरे काम। दोनों वुडन में है। ये टेराकोटा में है। ये भी टेराकोटा में है। ये टेराकोटा और जो भी दिखाया था मैंने शिल्प का एमसिल और पेपर मैशे के इस करके ही बनाया था, जो पीछे फिगर्स बैठी हैं दोनों ही। Sir, any theme of that, sir? हीर रांझा, जो पंजाब का एक बहुत ही फेमस लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। ये जय शशि और हीर रांझा, इनकी स्टोरी है, तो हीर रांझा है ये। थोड़ी सी हीर जो थी वो मॉडर्न इसमें बनी है। ये मेरा ब्रॉन्ज में और वुडन में, साथ में कॉपर वायर्स इसमें मिक्स की। ये मैंने वीएक्स में बनाया, बाद में इसको मेटल में ट्रांसफर किया है। वही डो मेटल कास्टिंग का जो लेट हमने वर्जन 1 किया है। यहाँ पे हम जो मोल्ड करते हैं वो क्ले की लेयर लगा के उसके बाद उसमें मोल्ड अपना तैयार करते हैं सारा स्टूडियो में। ये ब्रॉन्ज में है दोनों मेरे वर्क। ये एल्यूमिनियम में। ये एल्यूमिनियम में जो था, ये फ्रांस से थी लड़की, एक वायर वो ले गई थी मेरा एक वर्क, जो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ना, अब्स्ट्रैक्ट फेस है। जहांगीर में मेरा एक शो हुआ था, उसमें मतलब ये वर्क ले गए थे। मेरा अभी लेटेस्ट वर्क है, ये ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम के साथ साथ मैंने वायर लगाई है इसके बीच में। अभी फ्री में किया था मैंने। अभी स्टेट लेवल की एग्जीबिशन थी, उसमें हाईली रिकमेंडेड अवार्ड मिला था इसके ऊपर। ये मेरा मार्बल में है और थोड़ा बीड्स वगैरह इसमें यूज किए हैं मैंने। तो इसका एक रीजन ये भी था कि पीछे जो इसका स्टोन था ना, वो थोड़ा सा कम था, तो वो मैंने मेरे से, तो मैंने देखा कि इसको थोड़ा सा और मैनेज करूं, कैसे करूं। तो करते करते फिर मैं इस लेवल पे इसको ले गया। थोड़ा सा मतलब ये ब्लैक ब्यूटी इसका मैंने रख दिया फिर टाइटल। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू किशन। Nice word. Nice word, Thank sir. Any participant who have any questions, they can drop the question box in the chat. Sir, before proceed, I have some questions. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Sir, actually, what happened? I have seen your works. There is a मतलब वहाँ पर कोई आपका कोई थीम वगैरह है क्या सर?
जो आपका जैसे आइज देखते हैं हम, कपड़े के जो टेक्सचर है। किसकी बात कर रहे हो? सर आपका काम का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो थीम है आपका। हाँ, थीम थीम मोस्टली मेरा जो वर्क है वो मतलब ऐसे तो मैंने सोचा नहीं कि थीम लेके काम करूंगा, लेकिन कुछ इमोशंस मेरे जो काम के हैं ना वो अपने आप ही आ जाते हैं। और बस वो जो फीचर हैं वो मेरे मतलब जैसे निग्रोइड फीचर हैं थोड़े से, ट्राइबल से फॉर्म है मेरी मैक्सिमम। यस सर, समवेयर यू हैव, कहीं कहीं पर आपने बीट्स यूज किया है, बीट्स, छोटे छोटे जो बीट्स है, दिस इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर अफ्रीकन ट्राइबल मार्क्स लाइक दैट। हाँ, ये मैंने वैसे सोच के नहीं बनाया कि मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पता नहीं जैसे अंदर से निकला मेरे से कि हाँ ये मैं करूंगा, इस तरह का करूंगा, तो मैं मतलब कर दिया। अभी किसी का मैसेज आया है शायद यहाँ पे Yes, reflect हुआ है। sir, some participants are asking that which is your favorite medium to work on? अगर मैं सबसे पहले मीडियम की बात करूं तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट मीडियम था वुडन था। इवन जो आपने जो स्कल्पचर दिखाया था ना जिसमें एक वायर लेडी वाला दिखाया था और साथ में मदर एंड चाइल्ड वाला दिखाया था, तो जो मदर एंड चाइल्ड वाला स्कल्पचर था वो मेरा पहला वुड कार्विंग स्कल्पचर था वो। तो वुडन मेरा बहुत ही फेमस Okay. मीडियम है क्योंकि इसके जो नेचुरल कलर है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेराकोटा भी कर रहा हूँ, ब्रॉन्ज भी कर रहा हूँ, तो स्टोन और वुड कार्विंग जो थी वो मुझे बहुत ही अपील करती थी। वुडन में, खासकर वुडन में मैं ज्यादा इसमें काम करता हूँ। Sir, during lockdown, so many students, if you see, अगर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करना है नहीं करना है, क्या किसके ऊपर काम करना है, बहुत सारे बच्चे क्या है आपका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब देखते हैं हम लोग, बिकॉज हम्म एज ए स्टूडेंट। हम्म तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं सर, मतलब जिससे वो अपना काम को कंटिन्यू कर सके विदाउट शोइंग द पेंडेमिक टाइम्स। देखो कि जिंदगी के उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, ठीक है ना, तो हमें मतलब अपना जो टारगेट है वो सामने रखना है उसको। ठीक है, आज मतलब लॉकडाउन चल रहा है, आज कोरोना वायरस यहाँ पे चल रहा है, तो कल को ये ठीक भी हो जाना है। ठीक है, हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलना है, तो हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हमें अपना वर्क करना चाहिए। जैसे मैंने आज पेपर मैशे में बताया है, आप घर में आराम से काम कर सकते हो, क्ले नहीं है और मटेरियल हमारे पास नहीं है तो घर में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घर में तैयार हो जाता है मटेरियल। तो मेरा आज का जो मतलब कंसेप्ट था मैंने तभी पेपर मैशे के ऊपर किया था कि हम पेपर मैशे में घर में बैठ के तैयार भी इसको कर सकते हैं और वर्क भी इसमें कर सकते हैं। पेपर मैशे के बाद आपको लगता है कि मेरे पास से हैं, मैं इसको दूसरे मीडियम में कन्वर्ट करना है तो आप करवा सकते हैं, उसको मेटल में करवा लीजिए, ब्रॉन्ज में करवा लीजिए। हाँ, तो एक शुरुआत तो करिए, आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म एक आपके अंदर आ रही है, ओरिजिनल थॉट जो आपके अंदर आ रहा है उसको आप सामने तो रखिए पहले। ठीक है, कुछ भी देखो, अगर हम एक काम करेंगे 10 आइडिया हमारे अंदर से निकलेंगे। यस सर। ये तो रहता है, अप डाउन तो रहता ही है। Sir, one more question from the participants. What is your the signature style of your work, and what exactly inspire you? शायद तो देखिए मतलब जब हम शुरुआत करते हैं तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास, धीरे धीरे जब हम उसमें काम करते जाते हैं तो काफी आइडियाज हमारे पास आते हैं। वो अब काम को देख के ही आइडिया हो जाता है कि अब मैं इसकी नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं इसको। तो नेचर से हम काफी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। नेचर में इतनी अच्छी अच्छी फॉर्म्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर फॉर्म्स होती हैं, इतने अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो हमें इंस्पायर्ड करते हैं। बाकी जैसे शांति निकेतन गया तो वहाँ भी जो ट्राइबल थे वहाँ के, उनके जो मतलब एक ब्यूटी इंस्पायर्ड की है, उससे भी मैंने मतलब अपना जो वर्क है काफी इम्प्रूव हुआ मेरा। सिंपल फॉर्म में हम काम कर सकते हैं। Okay, sir. One more questions from participant is पूछ रहे कि does आवाज नहीं आ रही है sculpting किसी को। hello sir, hello sir. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Okay, one more questions from participants. He asking, does sculpting come spontaneously to you, or do you conceptualize an idea and then proceed with it?
पहले आप स्कल्पचर बनाते हैं वो खुद ब खुद आ जाता है, या उसका कंसेप्चुलाइज होने के बाद ही आप काम करते हैं? हाँ, इसको तो देखो, ऐसा है कि जब हम शुरू करते हैं तो आइडिया उसके बाद डेवलप होता है। ठीक है, हम जीरो से शुरू करते हैं तो उसको improve कर सकते हैं। एक स्पेस लेके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेगेटिव स्पेस इन द सेंस की मतलब खाली टेबल होता है हमारे पास सामने, तो हम क्ले से बनाते हैं, तो क्ले को ऐड कर करके बनाएंगे उसको, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। एक टेक्सचर लेके आप काम कर सकते हो। जैसे ये वर्क है मेरा, देखो इसमें मैंने ये टेक्सचर लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको टेक्सचर फॉर्म में लेके चला गया। ठीक है ना, हेड नॉर्मली ऐसे नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा टेक्सचर फॉर्म में लेके चला गया, थोड़ा हेड गियर्स टाइप का थोड़ा सा इसका बना दिया, तो ये थोड़ा सा मेरा इस तरह का मतलब हो गया। ये अंदर से जैसे खाली है टेराकोटा में इसको कन्वर्ट किया है। धीरे धीरे हम आइडिया अपना डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचर में लेके करो, चाहे वो फॉर्म के साथ कर लो। एक्सपेरिमेंट तो हम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। Thank you, sir. Sir, थैंक यू। another question from the participants is asking that how do you channel our emotions into the artwork? इमोशन, आपने वो रूप भेद के बारे में जानते हो? एस्थेटिक्स में है ये चैप्टर, सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, रूप भेद। ठीक है, रूप होता है, रूप भेद, रूप होता है जो रूप मतलब आइडल फॉर्म जो होती है, और भेद होता है उसकी मिस्ट्री। जैसे मैंने एक बैगर बनाना है, तो बैगर को हंसता हुआ तो मैं बनाऊंगा नहीं ना, इसके अंदर जो मतलब एक दर्द है, उसके अंदर जो एक सैड, वो मुझे पहले फील करनी है अपने अंदर, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो मेरे काम में नजर आएगी। तो वो उसकी जो आइडल फॉर्म है और उसका जो मिस्ट्री है, जब हम दोनों को कंबाइंड करेंगे तब जाके हमारी जो फीलिंग है वो उसमें काम में आएगी। तो इमोशन हमारे वही हैं कि अगर हम खुश होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं काम को, हमारे नजर आ जाते हैं। आर्ट एक ऐसी चीज है जो इंटरनल हमारी जो इमोशंस होती हैं, वो डांसर है वो डांस करके उसको शो करते हैं, जो आर्टिस्ट है स्कल्पटर है वो स्कल्पचर बना के कर देते हैं, जो पेंटर है वो पेंटिंग में अपनी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीजें तो हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती हैं काम में, जो इमोशंस है हमारे। Thank you, sir. Sir, another question from my side. I'm asking about that. ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बच्चे मतलब जब काम करते हैं तो बुक्स वगैरह जो काम को देखना है एक वो कम करते हैं। आजकल के जो बच्चे देखे हम लोग, जो नया जनरेशन से दे आर यूजिंग द मोबाइल, और काम देखते हैं उसके बाद उसका आइडिया डेवलप करते हैं। तो क्या होता है, जो एक बुक्स का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हाउ हाउ आर आर्टिस्ट आर डूइंग द वर्क्स, जो हमारे हमारे जो फेमस आर्टिस्ट है जैसे रामकिंकर वेज है या शंकु चौधरी, इससे उन्हें काम का किस तरह दे हैव डेवलप देयर वर्क्स, तो वो बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हैं सर इसके बारे में? सर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। देखो, जो काम है वो हमें दिखना चाहिए, जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जो सूरज है ना, उसकी जो मतलब रोशनी है हमें तभी पहुंचेगी जब हम उसका मतलब धूप में जाएंगे। ठीक है, अगर अंदर बैठे रहेंगे तो उसकी जो रोशनी है, उसकी जो मतलब रेज है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो बुक्स या ओरिजिनल काम जो उनके हैं उनको हमें थोड़ा देखना तो चाहिए, जरूरी है। इस तरह का उन्होंने काम किया है, उनके काम में क्या स्पेशलिटी है कि वो इतने फेमस हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। रामकिंकर वैद के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, मतलब उनके पास उनकी जो लाइफ है उसके बारे में आप देखें तो उनके पास मतलब खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन जब शांति निकेतन में मैंने उनका वर्क देखा, 14-15 फीट के आसपास जो उन्होंने सीमेंट का स्कल्पचर बनाए हैं, संथाल फैमिली बनाई है, और भी हार्वेस्टर बनाया है, और सुजाता वगैरह बनाए हैं स्कल्पचर। तो बहुत मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो बड़ी सिंपल फॉर्म है, लेकिन कैसे मैनेज किए हैं उन्होंने, तो वो एक मतलब हमें सीखने, वहां से सीखना चाहिए उन चीजों को। उनके पास पैसे भी नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया, तो डेडिकेशन तो उनके अंदर जो थी वो हमें उससे सीखना चाहिए। थैंक यू सर। सर we थैंक have यू come to किशोर। the conclusion part. Participants, your feedback from already given in the chat box. I'm going to the conclude part because Mastana sir is kind to you sir, क्योंकि
काम को संभावना ही नहीं थी, तो हमने इसलिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्योंकि यह काम को देखना, प्रोसेसली उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल क्योंकि अगर बिल्कुल आप क्योंकि आप काम ही नहीं करते तो वो इमेजिनेशंस और फीलिंग्स कुछ भी नहीं आएगा आपको। क्योंकि आप बिल्कुल बैठे रहते हैं तो काम नहीं आएगा आपको। यू हैव टू डू द पेपर वर्क से हम्म, स्टार्ट करना ही पड़ता है वो काम को। बिल्कुल बिल्कुल कोई आइडिया आता है तो पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको डेवलप करिए, आपने इस लेवल पे उसको लेके जाना है। यार देखो अप डाउन तो होता ही रहता है लाइफ में, कभी नेगेटिव सोचते हैं, अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो जो वर्क हमारे आइडिया जो हमारे अंदर आ रहा है उसको निकाल दीजिए, नहीं तो वो दब जाता है। Yes, sir. Okay. Before I conclude the sessions, I have to start with a vote of thanks. To conclude the session, I extremely extend the gratitude to our Honorable Vice Chancellor, sir, Academic Chairperson, sir, Registered Dean, ma'am, Dr. Mosumi Teka, HOD of Royal School of Finance, Sumanta Dutta Chaudhary, and most prominently our technical staff, Mr. Shashank Barua and Mr. Vijay Kalita, for their sincere supports. I would like to give your sincere thanks to our esteemed guest for accepting our invitations for today's webinar. Thank you, sir. And also our sincere spectators.